Hello everyone. Today we are going to learn our fifth lesson of Standard 4th, our main course book daffodils. Okay, trees. So today we are going to learn the fifth chapter, trees. Here Joyce Kilmer is the writer. Okay. Dear students, first thing I want to ask you, do you know about trees? Trees, first thing, trees are living things, है ना? And because of we are discussing about trees or we are learn about trees, here the poet he shares his thought about trees. Okay na? So first thing we have to discuss about our writer. Who was the writer? Joyce Kilmer was the writer. Okay. So first about the author, Alfred Joyce Kilmer. He was born on December 6, 1886. Remember it? Alfred Joyce Kilmer was born on December 6 in 1886. He was an American journalist, poet, literary critic, lecturer and editor. Here the picture also given for you, isn't it? So he was Joyce Kilmer. Okay. So Kilmer was considered the leading American poet and lecturer of his generation. At Columbia, Kilmer was vice president of the Philoxian Society, associate editor of Columbia Spectator, the campus newspaper, and member of the debating union. So students, देखो यहाँ पर आपको जो ऑथर के बारे में जो दिया गया है वो कब पैदा हुए थे दिया गया है. And he was also here also given he was born on 1886 means the 1918 is the last day of his life. Okay. Then we know about Alfred Joyce Kilmer. He was born on December 6 on 1886 and he was an American journalist, poet, literary critic, lecturer and editor, all combined in one person. Okay. Then also he was considered the leading of American poet and the lecturer of his generation. उनके generation का जो भी thought था उसके ऊपर वो lecturer करते. Then at Columbia, Kilmer was vice president. At Columbia में Kilmer was vice president of Philoxian Society. जो Philoxian Society जो था उसका vice president थे. ठीक है ना? Columbia में this was the society. Joyce Kilmer was the president at that time. Okay. Then associate editor of Columbia Spectator. Columbia Spectator का associate editor भी थे. Then the campus newspaper and member of debating union. Debating union का member भी थे. Okay. Now we have to read the poem first. Thereafter we may discuss. Okay. So let's start. Trees. I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweat flowing rest. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, whose intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. Do you understand that? At first you have to read. Okay. So now we have to discuss about the tree. The first thing, let's warm up a little.
Which of the given pictures do you like the most and why? So I think we all have like this picture, isn't it? Do you like this picture? No. Everyone said no, isn't it? So why? Why means this is the greenery. This is one of the tree and this is also one of the tree. This tree has greenery in her own and this was dried, isn't it? So in this tree it looks इट्स गिव अस द प्लेजर ऑफ आवर आइज, है ना. ये जो है ये हमें बहुत खुशी देता है, बहुत, क्योंकि ग्रीनरी है, सुंदर दिख रहा है कि नहीं. ये जो है ड्राइनेस है, इसमें कुछ नहीं है, पत्ता कुछ नहीं है. तो इसमें डिफरेंस ये है कि ये हमें हमारे लिए, हमारे आँखों को ही नहीं हमारे मन को भी सुकून देता है. दैट इज़ वाई वी ऑल्सो लाइक दिस पिक्चर. ओके, सो नाउ just look at the stanza. Okay, now the poet says that I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. Why? देखो, the poet he thought that things, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, I think that I shall never see a poem as lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweat flowing breast. मीन्स देखो यहाँ पर द पोएट थिंक दैट ऑफ ए ट्री एज ए पोएम बिकॉज इट विल हैव एन इंटीमेट कनेक्शन टू द अर्थ एंड इट्स एलिमेंट्स. ओके, सो समझ में आया. देखो तो पोएट क्या सोच रहे हैं, उनके नज़रिया में, मतलब नज़र में, उनके नज़र में उनको क्या लगता है कि ये जो हमारा जो ट्री है, जैसे पोएम जो बहुत सुंदर होता है. अच्छा बताओ, पोएम सुंदर होता है कि नहीं? सुंदर मतलब क्या, दिखने में सुंदर ही बोल के नहीं है. कोई भी चीज़ का उसकी जो मतलब होता है, उस जो अच्छा आप लोग गाना तो सुनते होगे ना, है ना. तो जिस तरीके से एक सॉन्ग बहुत सुंदर लगता है, हमें अच्छा लगता है, उसी तरीके से पोएम ऑल्सो बहुत अच्छा लगता है ना. सो यहाँ पर पोएट ये बताना चाहते हैं कि आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी, कहीं मैंने देखा नहीं है ऐसा, किसके जैसा, एज पोएम एज लवली एज ए ट्री. ट्री की जैसा, एक जैसे कि पोएम सुंदर है उसी तरीके से एक ट्री का जो सुंदरता है उसकी तरह मैंने कभी और दूसरा कुछ देखा नहीं है. ओके, देखो, ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड एग्नेस्ट द एर्थ्स स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट. देखो यहाँ पर मातृत्व को दर्शाया गया है. मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो पोएट का जो नज़रिया है, ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड एग्नेस्ट द एर्थ्स स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट. देखो यहाँ पर जो बताया गया है, ये जो हमारे जो राइटर हैं वो क्या बताना चाहते हैं, ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड एग्नेस्ट द एर्थ्स स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट. यहाँ पर क्या है, देखो, जो कि प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं. तो यहाँ अर्थ कौन है, हमारी पृथ्वी है. पृथ्वी की जो उत्पादक पदार्थ होता है ना, जो उत्पादन होता है, जो कि अनाज वगैरह, वो किसके मतलब जो एक माँ, यहाँ पर बताया गया एक माँ. अर्थ मीन्स क्या है, माँ, है ना. हमारी धरती माता हम लोग जिसको बोलते हैं ना, अर्थ इज द मदर ऑफ, है ना. Exactly just like our mother who's feeding her child, है ना. One of the mother is feeding her child by her breast. So here also the earth is one of the mother and he feeding, sorry, she feeding the persons who are hungry, है ना. So exactly like that the tree also a tree whose hungry mouth is pressed, उसके जो कि भूखे हैं उनके भूख को मिटाता है, उनको खाना खिलाता है ना. एग्नेस्ट द अर्थ स्वेट फ्लोइंग ब्रेस्ट, अर्थ से जो पसीना बहाते हैं, जो कि निकलता है, जो सोना उगता है अर्थ से भी, वो कहाँ जाता है, जो भूखों को खाना खिलाने में जाता है. जैसे कि देखो ट्री से हम लोगों को सांस लेने के लिए वी आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम ट्री ऑल्सो. एग्जैक्टली लाइक दैट
A tree is, it makes the beautiful thing. It's giving oxygen. It's giving out oxygen. The another person, the human, can't make it, isn't it? The human body, the men, they can't make it. Who's that can a tree possible by the tree, है ना? That can possible by the tree. जो कि हम इंसान नहीं बना सकते, वो ट्री बना के हम लोगों को पाल रहा है, मतलब हाँ, ईच एंड एवरी वन, है ना, सभी लिविंग थिंग्स को पाल रहा है. देन ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे. ट्री कैसा दिख रहा है? तो ऑलवेज देखो, हम लोग जब किस मुसीबत में आ जाते हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं? वी आर प्रेइंग टू गॉड ऑल द डे, है ना. जबकि हम लोग मुसीबत में पड़ते हैं, वी आर प्रेइंग टू गॉड, प्रार्थना करते हैं. सो एग्जैक्टली लाइक दैट ए ट्री ऑल्सो लिफ्ट हर लीफी आर्म्स, उसके जो पत्तों वाला आर्म्स है उसको ऊपर उठा के ऑल द डे इट्स प्रेज टू द गॉड, है ना. देन ए ट्री दैट मे इन समर वेयर ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर. ए ट्री ऑल्सो in summer it gives the nest to the robins. Not only the robins, all the time it gives the nest to the birds, है ना. बर्ड्स को वो घर बनाने के लिए भी देते हैं. देन ए ट्री दैट मे इन समर वेयर मीन्स क्या है? समर में जो कि बहुत गर्मी होता है जब, तो उसमें वो जैसे हम लोग समर वेयर पहनते हैं, मतलब हल्का वाला कपड़ा पहनते हैं, उसी तरीके से ये जो रॉबिन्स होता है, रॉबिन्स के लिए भी वो कपड़े जैसे काम करता है. कपड़े मतलब क्या है? इसमें कंपैरिजन है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें कंपेयर किया गया है, जो राइटर है वो कंपेयर किए हुए हैं. जैसे कि उनको हल्का पत्तेदार हवादार उनका ओढ़ने के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए उनको जगह दे रहा है ना. देन अपन हुज बॉसम स्नो हैज लेन who intimately lives with rain. ठीक है. तो अपन whose bosom snow has lain, जबकि स्नोफॉल होता है, स्नो लेन्स, है ना. who intimately lives with rains, वो देखो बारिश हो, स्नोफॉल हो, धूप हो, वो सभी में उन सबको बचाता है कि नहीं. स्नोफॉल होता है तभी उसको अपने पत्तों से ढक कर, है ना. जैसे कि हम लोग बारिश में हम लोग छाते का इस्तेमाल करते हैं, रेन में कुछ भी हो जाए, हम लोग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग बच लेते हैं. तो बर्ड्स, द एनिमल्स, दे हैव, हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है ना. एंड देन सो द ट्री दैट गिव्स द रेस्ट फॉर द लिविंग बींग्स ऑल्सो. देन पोएम्स आर मेड बाई फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री. सो और भी क्या बोल रहे हैं जो राइटर, क्या बोल रहे हैं, कवि क्या बोल रहे हैं? पोएम्स आर मेड बाई फूल्स लाइक मी, फूल्स मेरे जैसे बेवकूफ़ ही ये ऐसा पोएम्स को बना सकते हैं. बट ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री. हम तो लिख सकते हैं, पोएम बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ए गॉड, ओनली गॉड कैन मेक ए ट्री. ट्री को भगवान ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता. ओके. तो बच्चों देखो समझ में आया कि नहीं आपको? फिर से मैं इसको अच्छी तरीके से और एक बार समझा रही हूँ, डिटेल से, थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना. ओके. सो देखो, हियर जोशी किल्मर and his thought was, he wants to share his thought about trees with us. So the poem begins, this poem begins with the speaker starting that he will never see a poem that is more beautiful than a tree. What is the difference between tree and poem? The poet, he says that he will never see a poem that is more beautiful than a tree. ट्री जितना सुंदर, और वो पोएम को भी नहीं मान रहे हैं, पोएम से भी और बहुत ज़्यादा सुंदर है बोल के बता रहे हैं. ठीक है. देन एंड ऑल्सो ही डज नॉट बिलीव दैट ह्यूमैनिटी इज कैपेबल ऑफ मेकिंग समथिंग बेटर देन व्हाट गॉड हैज़ मेड. समझ में आ रहा है? सो हियर ही सेज दैट पोएम्स आर मेड बाय who likes me but only God can make a tree. That is why he says that he does not believe that what the humanity is incapable to making something better than what God has made, है ना. जो भगवान बनाते हैं उनसे ज़्यादा we don't have the capability, है ना. The humanity is no
the capability to make the things as like God, isn't it? Then the lines are devoted to the type of trees and he has in his mind. It will have an intimate connection, है ना? It has the intimate connection with the earth, है ना? To the earth and its elements. ये जो है the God, the tree, it has the ultimate intimate connection with the earth. Earth के साथ जुड़ा हुआ है ना? There will be birds nesting in the branches, है ना? There will be bird nesting in the branches in the summer and gently snow on the trees bosom in winter also, है ना? All the time in the summer, winter, in the rain, they make their nests and bosom, है ना? So the poem concludes that with the speaker explaining that no matter what ह्यूमन काइंड डज, है ना? नो मैटर वो इंसान के साथ क्या मैटर होता है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं. देन नो पोएम इज पीस ऑफ आर्ट विल बी लवलियर देन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द प्लानट, है ना? जो हमारे पृथ्वी में जो कि बनावट है, जो कि गॉड ने जो बनाया है उससे ज़्यादा. सो हियर ह्यूमन काइंड इज डज नॉट it doesn't explaining, है ना? Explaining or concluding the earth as about the as much as the गॉड, है ना? जैसे कि गॉड ने जिसको कि भगवान ने जिसको बनाया है, जो अर्थ को बनाया है, उनके जितना उसको एग्जिस्ट करने से प्लानट में हमारा और कुछ भी नहीं बचता है. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पोएम. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ like and subscribe the channel, and if you have any doubts, so write me in the comment section. Okay, thank you.